अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल हसदे वसदे लोग दे नाल हाज़र हां मैं शहबाज। तो जैसा कि तुहानू राती वादा किया है कि सुबह तुहानू इंशाअल्लाह ताला वहाया जाएगा तो डिटेल दे नाल हस्पताल का कि कम चल रहा। राती तुहानू थोड़ा जिहा डैमो आया ही, तो आओ तुहानू हुण तफसील वहाने के अंदर की कम चल रहा। आजो जी। मारो हाँ जिधर कैमरा। नाज़रीन तुसीं वेख सकते हो कि जोरों शोर का काम जारी है। ये भाई जी भी कोई काम कर रहे हैं, इन्हों को पूछने आ कि एक आधा नाप ले। भाई जी की हाल है? ठीक ठाक। तो भाई जी किस सिलसिले च कदा नाप तुसीं लै रहे जे? अलमोनियम का खान साहब ने मिलाया, अलमोनियम का साइज लिया रहे थे, खिड़की अंदर बादल लगने ने। ठीक हो गया। तो तुहाडी काम तुसीं जिम्मेदार हो सारा जिहड़ा तुसीं कर रहे हो, जां कि तुहाडे तो तुहाडे नाल कोई है ने होर जिहड़े जिम्मेदार? उस्ताद ने पूछ लिया, उन्होंने दस दिया। उस्ताद सलाम अलैकुम जी। सर की हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। की नाम सर जी तुहाडा? अली शान। अली शान। ते सर जी एक आधा की किस सिलसिले तुसीं काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂਰਾਬਾਦ। जी जी ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल जी। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸਹੀ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ जी जी ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਓ। यानी हाले कोटेशन ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਗਾਲਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਹੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ। ਸਹੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 20-22 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ। सही हो गया। यानी एक मुख्तात अंदाजा को 7-8 लाख रुपये तक मेरा ख्याल आंदा है, अगर मैंने गलती नहीं भी लगती थी। 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਲੱਖ यानी माशाअल्लाह। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਡੂਸ ਕੋਈ। ਨੂਰਾਬਾਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂਰਾਬਾਦ, ਸ਼ੁਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਲਓ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਘੂਏ ਕੀਤੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हुकूमत ने वैसे जो आप बंद कर छड़े ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ हुकूमत ने बंद कर छड़े ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਵਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਤਵਾਨਾ ਤਰੋ ਤਵਾਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। इधर मार है कर कैमरा यार, इधर हल्का जा इधर मार के वेखिए सही आपी भी, तो फिर खान साहब को जाके डिटेल में पूछने हैं। माशाअल्लाह बाबा इधर अगे भी है ने कमरे ने। ये खान साहब भी सानू तफसील ना दस सकते ने ते आइयो दसिए खान साहब को गल करने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त घुएं की हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल घुएं की है। यहाँ पे इलाके की बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत असलान खान हमारे साथ मौजूद है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर हैं और सियासी तौर पे भी इस इलाके के कदावर शख्सियत है। वैसे इनका कद छोटा लेकिन कदावर शख्सियत है। तो हाँ साहब, आज के काम के हवाले से ज़रा मुझे बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेठी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए
ये हॉस्पिटल जो हमारा GRD गोएं की है 1952 में ज़ेर तमीर हुई थी और उसके बाद ये चलती रही है, गाहे बगाहे इसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 8-9 माह से ये बंद थी। और महकमा सेहत सियालकोट के जो साबका ये CO हेल्थ थे डॉक्टर रेहान, उन्होंने इसे बंद कर दिया था गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो RDs को बंद करने की थी, GRDs को बंद करने की नहीं थी। तो उन्होंने इसे भी बंद कर दिया। जब ये बंद हो गई तो ये बिल्कुल लावारिस हो गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे और यहाँ पे जानवर और इस तरह के जो इलाके के जो लोग हैं स्पेशली, वो सेहत की सहूलियात से जो है मरहूम हो चुके थे। तो मैंने ये काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इस पर काविश की, लेकिन जो कामयाबी मुझे मिली वो अगस्त में आके कामयाबी मिली कि महकमा सेहत की तरफ से मुझे ये कहा गया कि आपका स्टाफ आपको हम वापस दे देते हैं, तो आप इसे जो है ना दोबारा से ओपन कर लें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ इस सिलसिले में। सुनने में आया था कि यहाँ पे क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी चला था यहाँ पे, आपको पता है ना, कि यहाँ पे मवेशी बांधे जाते हैं, बड़ी हालतें जार इसकी। ये भी कहा जाता था, अहले इलाका कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात का कब्जा हो चुका है और बदरुएं भी यहाँ पे आ चुके हैं। बड़ा एक इशू था ये वाला जी, तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, जो बदरूहें हैं, जिन्नात का कब्जा है, जब कोई भी जगह खाली हो, जारी बात है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप अपना घर खाली छोड़ें, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। आप वहाँ पे कब्जा ग्रुप आ जाता है, लोग जानवर बांधने शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो इस हॉस्पिटल के हवाले से जो बात है, वो मैंने अपना जो फ़र्ज़ समझ के ये काम किया है कि मेरे इलाके के लोगों को सेहत की सहूलियात जो है ना वो फौरी तौर पे मुयस्सर हों और अच्छे तरीके से मुयस्सर हों। तो जब महकमा सेहत सियालकोट ने हमें स्टाफ दिया तो यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई चीज़ नहीं थी। इवन कि यहाँ पे आज भी आप देख रहे हैं ये जो चेयर्स, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी हमने अपने घर से ला के रखी हुई हैं ताकि अपनी मदद आपके तहत। इसका जब हमने काम शुरू किया तो वो सारा अपनी मदद आपके तहत शुरू किया। आज ये जो छत है, ये सारी चीज़ें, कोई भी इस जितना भी जो आप अभी पिक्चर आप देख रहे हैं, आपके नाजरीन जो देखेंगे, इसमें मैं बताता चलूँ कि ये सारा अपनी मदद आपके तहत है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मेरे साथ तावन किया, जिन्होंने इलाके की जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मेरी इस काविश को सराहा और मेरे साथ लब्बैक कहा। और उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरे साथ, दोस्त अहबाब जो मेरे बैरून मुल्क हैं, 1-2 मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने, और मेरे यहाँ पे गाँव के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ जो तावन किया और हम इसको लेके चले। तावन चाहे किसी का 1 रुपये का है, चाहे किसी का 10,000 का है, चाहे किसी का कुछ है, तावन उनका मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बढ़ाता गया और आज हम ये आपके सामने इसकी छत डाल रहे हैं। हमारे एक अजीज़ हैं, दोस्त हैं हमारे, वो इसमें बड़ा उनका जो है वाइटल रोल कंट्रीब्यूशन है, रोल है उनका। शाकिर इकबाल साहब, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। यहाँ हमारे गोएंकी के जो दोस्त हैं, वसीम हैं, उसके अलावा जो फैसल है, हाजी यूनुस साहब हैं, नवाज़ गुमान है, और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये मेरे साथ इसको जो है ना कंट्रीब्यूट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक आपको एग्जांपल देता चलूँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली आग थी, तो जब आग में जलाया जा रहा था तो वो एक चिड़िया अपनी चूंच में पानी लेके आ रही थी। तो दूसरे जानवरों ने पूछा, परिंदों ने पूछा, ये तुम्हारी चूंच से आग तो नहीं बुझेगी? तो उसने कहा, आग मुझे भी पता नहीं बुझेगी, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। तो एक ऐसा भाई हमारा, वो फेरी करता है, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे जाता है, बर्तन बेचता है। वो अगले दिन आया, उसने जज्बे की मैं बात करूं, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी, मैं जज्बे की बात करूं तो उसने एक गिलासों का पैकेट, एक चाय के कपों का डिब्बा और मुझे ये कह के गया कि जी मैं यही कर सकता हूँ, आप ये हमारी तरफ से कबूल करें और बाद में मैं आपको गिफ्ट और भी कोई दूंगा जो हॉस्पिटल के इस्तेमाल में आए। तो ये सारा इसी तरह से हुआ है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग को मैं आपकी वसादत से आपके नाजरीन को, अपने अहले इलाका को बताता चलूँ कि ये बिल्डिंग को दोबारा से हम रेनोवेट कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। आप अगर अंदर आए, मैं आपको दिखा दूं कि हम इस पे हमारा जो इन फ्यूचर क्या प्लान्स है वो आप और आपके सामाइन जो है ना वो देखें।
अच्छा, एक सवाल ये है कि आपका सियासी तौर पे भी सियालकोट में बहुत गहरा ताल्लुक है। जो इलाकाई सियासतदान हैं, MNAs हैं, जो यहाँ पे MPA हैं, उनकी तरफ से भी कोई तावन हुआ है इस रेनोवेशन के लिए? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अभी तक ना ही किसी MNA और ना ही किसी MPO को मैंने अप्रोच नहीं किया। क्यों मैंने अप्रोच नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एक सरकारी सतह पे चीज़ें जो ख़त्म की गई हैं, इसमें MP MNAs के लिए ये काफ़ी प्ली होती है कि ये तो ख़त्म हो गई हैं, अब इसके फंड्स हम कहाँ से लाएं। तो जब हम इसे रेनोवेट करके कंप्लीट करके महकमा सेहत के हवाले करेंगे तो फिर उनकी मजबूरी बन जाएगी इसको अपग्रेड करना। मैं आपको बताता चलूँ कि अनकरीब एक हाई ऑफिशियल डेलीगेशन का इधर विज़िट है, प्लान है विज़िट, वो चंद दिनों में विज़िट हो सकता है। उसके बाद हमारी कोशिश है कि इस हॉस्पिटल को मदर एंड चाइल्ड केयर का जो है वो स्टेटस दे दिया जाए।